Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the syllabus of Himachal Pradesh Public Service Commission HPAS syllabus. If I talk about Himachal Pradesh Administrative Service exam, so this exam is consist of three part. Generally इसमें तीन part होते हैं. The first part is prelim, second is mains, and third is interview. जनरली किसी भी कैंडिडेट को इस एग्जाम की अगर प्रेपरेशन करनी है, बेसिकली उसको तीन स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है. पहला स्टेज है प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस, थर्ड इज इंटरव्यू. बेसिकली ये जो प्रीलिम एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है. दिस इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप. एंड इफ आई टॉक अबाउट prelim, then it has two exam. One is GS1 and second is CSAT. GS1 stands for General Study 1. If I talk about General Study 1 paper, then you have to prepare history, polity, geography, economy, Himachal Pradesh. If I talk about these five subjects are known to be as major subject. And actually most of the paper will come out of these five major subject. If I talk about other subject, then it is art and culture, environment, journal science, and current affair. Okay. So these three subjects are minor subject, and these subjects are also important for your mains exam. These are also important for your mains exam. Minor subject, but majority of the question will come out of these five subjects. That is why these are known as major subject. If I talk about CSAT, then CSAT is qualifying in nature. What do you mean by qualifying? That only you have to score 33%. If you are scoring less than 33%, then your GS1 paper will not be going to check by the examiner. एग्जामिनर आपका पेपर ही चेक नहीं करेगा GS1 का अगर आप CSAT में फेल हो जाते हो या आपके 33% से कम मार्क्स आते हैं. बट आपको 33% ही लेने. GS1 जो पेपर है ये आपकी रियल कट ऑफ बनाएगा प्रीलिम्स में. तो कट ऑफ के लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी है GS1 की. CSAT क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना आपका GS1 पेपर चेक ही नहीं होगा. सो 33% लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है. बेसिकली इसमें आपको प्रेपरेशन क्या करना है? इसमें प्रेपरेशन करना है बेसिकली मैथमेटिक्स, रीजनिंग, and English. If I talk about mains, so mains is a subjective kind of exam. It is a very subjective kind of exam. तो जनरली इसमें दो लैंग्वेज के पेपर होते हैं. लैंग्वेज के पेपर में हिंदी, then English and essay. दो लैंग्वेज के पेपर and one essay. Hindi and English are qualifying in nature. Again, if I talk about other part,
It has GS1, GS2 and GS3. अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हिमाचल को अगर निकाल दिया जाए तो GS4 भी होता है, बट जनरली अभी हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो GS1, GS2, GS3। बेसिकली यहाँ पे तीन तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कॉम्बिनेशन किस किस कॉम्बिनेशन में आते हैं सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। Third stage is interview. If I talk about interview, then what is the objective of interview? Interviewer want to check your personality. Means exam will check your depth knowledge. And basically objective paper, prelims paper will check your psychology. So basically, what is the objective of this prelims, mains as well as interview? Basically, if prelim is a objective kind of paper, so many traps will be there, MCQ type of question is there, and in the question the answer is already there in term of option A, B, C, D. You have to choose the right answer. Choosing a right answer out of a option, it is a more psychological thing. बेसिकली साइकोलॉजी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा चेक होती है, एंड इट इज ए क्लास 1 ऑफिसर एग्जाम। तो टैप जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है, टैप इन टर्म ऑफ एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का टैप डाला जा सकता है। तो पेपर में जितना साइकोलॉजी बेटर रहेगा, फिल्म क्वालिफाई होने के चांसेस उतने ज्यादा सही रहते हैं। If I talk about mains exam, so it is a very subjective kind of paper, and in-depth knowledge is required in this paper. The examiner want to check whether the aspirant has studied in depth or not. So it will they will check your depth knowledge, and you will only qualified means if you are studying very hard. अगर आप इन डेप्थ चीजों को पढ़ रहे हो, अच्छे से आपको चीजों का पता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट इन एग्जाम। आपको पेपर में अल्टीमेटली लिखना है। लिखना कैसे है? लिखना है स्ट्रक्चर में लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जैसे आप 10th+2 ग्रेजुएशन में लिखते हैं, तो वैसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इसमें एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर होता है दैट यू हैव टू फॉलो प्रॉपरली। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली देना है। ठीक है, जो भी पूछा गया है उसको बॉडी में लेके आना है। ठीक है, उसका प्रॉपर कंक्लूजन देना है। ठीक है, सो दिस दिस इज कॉल्ड टू बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, so when we talk about answer writing, then structure is very important in any exam. ठीक है, तो अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो बेसिकली मान लो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू आल्सो मेक डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है कि आप कितना लिख सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू, अभी इंटरव्यूअर को नॉलेज चेक नहीं करना है। इंटरव्यूअर ओनली वांट टू नो योर पर्सनालिटी की whether you are a deserving candidate or not. अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो उनको बात करके ही आपसे पता चल जाएगा कि अंदर से आप क्या हैं। ठीक है, आप प्रेशर झेल सकते हैं क्या, आप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं क्या, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी के अलावा और क्या चीज देखी जाएगी? जो भी आपने फिल्म मेंस के लिए पढ़ा है, जो भी आपने फिल्म्स और मेंस के लिए पढ़ा है, क्या आप उसको
अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी में जो भी राइट्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, हाउ यू विल यूज दोज आर्टिकल्स इन प्रैक्टिकली। इफ यू आर ए एसडीएम, इफ यू गॉट सिलेक्टेड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप उनको कैसे यूज करोगे? तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज दे वांट टू चेक इन द इंटरव्यू। ओवरऑल ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उस सर्विस के लिए, नहीं है। तो इस वीडियो में हम प्रीलिम सिलेबस का ही ओवरव्यू ढंग से करेंगे एंड अगले वीडियो में हम मेंस को देखेंगे। तो अगर हम बात करें प्रीलिम के सिलेबस की, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये प्रीलिम पेपर, दो पेपर हैं इसमें। पहला पेपर होता है GS1 एंड सेकंड पेपर इज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फर्स्ट पेपर इज GS1। अगर मैं बात करूं कोडिंग की, तो इसमें हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है एंड सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वैसे तो ये एक लाइन में लिखा हुआ है, बट ये अभी सारे सब्जेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के। हिस्ट्री हिमाचल का अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर अलग सब्जेक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये सारा किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश जो है वो एक अच्छा मेजोरिटी में रहता है इस पेपर में। तो बड़े अच्छे से इस सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एग्जाम हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर। ठीक है, और जनरली इस पेपर में जो करंट अफेयर आता है ना, बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड आता है, बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड आता है, बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आंसर देना। तो फैक्ट बेस्ड आपको करंट अफेयर तैयार करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेसिकली ये बात कर रहा है, वर्ड बात कर रहा है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बड़े अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, तो ये बात कर रहा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इसमें कवर करना है, वो हमने लिखा है। नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और इसके साथ ही एक और सब्जेक्ट है, दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस बेसिकली मेंस में ज्यादातर पूछी जाती है, बट कभी कभी कोई स्कीम्स वगैरह रहती हैं तो वो आपको प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। अदरवाइज गवर्नेंस जो है वो मेंस में अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करी जाए तो 15-16 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हर बार पॉलिटी के रहते ही हैं। इसके अलावा पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ये भी आपको पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम। ठीक है, अब ये गवर्नेंस सब्जेक्ट क्या है? गवर्नेंस सब्जेक्ट है कि भाई अगर आप सरकार में चुने जाते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन होती है, यू विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाओगे? यू विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर किस मीडियम से, किस किस प्लेटफॉर्म से आपको पहुंचाना है। यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, inclusion, demography, social sector initiative. Basically it is talking about Indian economy. इंडियन इकोनॉमी आपको प्रेपरेशन करना है। इंडियन इकोनॉमी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, सोशल सेक्टर स्कीम्स होगी, जो भी सोशल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो चीजें होगी, नेशनल इनकम, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो है जर्नल इशू ऑन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से भी थोड़े क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाते हैं। एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये करंट इशू भी है, तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज जर्नल साइंस। जर्नल साइंस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हिमाचल प्रदेश का कवर करना है। मेजोरिटी में रहता है ये पेपर में। करंट अफेयर आपको पढ़ना है और करंट अफेयर से फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन निकालनी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री आपको बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम के लिए। अगर बात करी जाए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, पॉलिटी ज्यादा आती है, गवर्नेंस मेंस में पूछी जाती है। और अगर बात करी जाए इंडियन इकोनॉमी की, तो ये भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, एज वेल एज इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये दोनों प्रिपेयर करने होते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं। So I hope this is clear. This one is clear, I think. If I talk about second paper, तो second paper CSET है, और इसमें मैंने आपको बोला कि इंग्लिश हो गया, देन योर मैथ्स हो गया, रीजनिंग, these are the three subject. बेसिकली कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन किसका पार्ट है? कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं, इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेंट्रल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ये सारा किसका पार्ट है? ये रीजनिंग का पार्ट है। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये सारा मैथ्स का पार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, ये इंग्लिश का पार्ट है। बेसिकली ये तीन चीजें हैं, ये आपको प्रिपेयर करनी है। तो बेसिकली लास्ट में अगर आप इसको एक मंथ लगा दें, एक दो मंथ अगर आप इसको पढ़ लें और दो तीन टेस्ट लगा लें, तो ये बड़े आराम से प्रेपरेशन हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली प्रीलिम्स में जो चीजें आपको कवर करनी है वो ऐसे ही करनी है। और देखो, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, आई थिंक अगर आपके पास मेजर सब्जेक्ट अगर मैंने बोले वो आपके कवर हो जाते हैं, उसके बाद आपको सीरीज लगा के देख लेना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कितने सही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना चाहिए अगर आपको प्रीलिम निकालना है तो। ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रीलिम मेंस दोनों को साथ में प्रेपरेशन करें, दोनों की साथ में प्रेपरेशन करें, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रेपरेशन साथ में होती है। ठीक है। और अगर आपको ऐसे प्रेपरेशन करनी है तो बेसिकली 1 ईयर का टाइम पीरियड चाहिए चाहिए, ये भी कम रहता है। बट अगर आपको कंबाइंड वे में, कंसोलिडेटेड वे में प्रीलिम मेंस एज वेल एज इंटरव्यू की प्रेपरेशन करनी है, देन 1 ईयर टाइम पीरियड एटलीस्ट आपको चाहिए, 1 ईयर की सिटिंग आपको चाहिए। एंड इससे जो है वो आपका सिलेबस भी कवर होगा, आपको डेप्थ नॉलेज भी मिलेगा, एंड जब आप पढ़ोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में भी काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा। जब नॉलेज आता है तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ठीक है। जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाए,
आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज हो चीजों का। ठीक है, तो इसकी कंबाइंड ही तैयारी हो सकती है। कंबाइंड तैयारी कैसे हो सकती है? बेसिकली आपको पढ़ना कैसे है, जब आप पढ़ रहे हैं आपको ये 1 ईयर कैटेगराइज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को लेके। ठीक है, मतलब कितने टाइम पीरियड में आपको अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, और मेंस में आई थिंक मैं एक चीज भूल गया आपको बताने के लिए कि मेंस में एक पेपर और होता है, 2 पेपर और होते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्शनल पेपर। और ये आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेंस में 2 पेपर और होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। तो बेसिकली आपको पहले ये देखना है कि आपका सिलेबस जो मेजर सब्जेक्ट है वो कब तक पूरे होते हैं। तो आई थिंक ये 6 से 7 मंथ में कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश, और जो माइनर सब्जेक्ट मैंने बताए ये पूरे हो जाने चाहिए विद इन 6 एंड 7 मंथ। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ना है, तो आगे आपको ऑप्शनल जो है वो प्रेपरेशन करना पड़ेगा। ऑप्शनल ऑप्शनल आपको 3-4 महीने में खत्म करना पड़ेगा, प्लस जो भी आपके माइनर सब्जेक्ट बचते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 2-3 महीने बचे, जो भी आपके 2 महीने बचे, इसमें आपको रिवीजन प्लस जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम के लिए, प्रीलिम पे फुल फोकस करना है, रिवीजन करना है साथ साथ में, और टेस्ट सीरीज लगानी है आपको प्रीलिम्स की। ठीक है, अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो तुरंत आपको मेंस का रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है और उसकी टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं उसके तुरंत बाद आपको अपना डैफ जो है वो तैयार करना है। डिटेल एनालिसिस फॉर्म होता है ये आपके बारे में होता है, ये आपको फिल करके भेजना पड़ता है, इसी में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये आपको ढंग से प्रेपरेशन करना सीखना है, एंड आपने उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करना है। क्लियर? तो बेसिकली आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी तो हमने प्रीलिम के बारे में ही डिस्कस किया, प्रीलिम सिलेबस को ही डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंस के सिलेबस है उसको भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसका ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, एंड मेंस की किस तरह से आगे स्ट्रेटजी बनाई जाए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेटजी वाइज तो हम वीडियोस जो है वो लेके आते रहेंगे, और प्रीलिम के लिए भी मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ, मेंस आंसर राइटिंग के लिए वीडियोस जो है वो मैं डाल रहा हूँ अभी भी। एंड अभी मेंस की जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो जस्ट एक डेमो जैसी है, एंड उसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि जो भी बिगिनर हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनको सही रहे कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आता है। बेसिकली एचएस का जो मेंस रहता है उसमें क्वेश्चन काफी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट ही लेंगे, बाद में जो है वो बड़े लेवल पे भी क्वेश्चन लेंगे, यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन उठाएंगे हम, तो उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।